हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास वाज इंटरप्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। तो हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट क्लास ऑफ पुल्ली देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकेंड क्लास ऑफ पुल्ली देखेंगे, थर्ड क्लास ऑफ पुल्ली देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। तो ये है सेकेंड क्लास ऑफ पुल्ली। यू कैन सी वेरी वेल, डोंट सी डायमेंशंस, just focus on the way this pulley arrangement is made. There are two types of blocks here. First, upper block, and this is the lower block. The upper block consists of fixed pulleys, lower block consists of movable pulleys. All right, and the effort is being pulled here by you. Let's suppose this is you. All right, and the load is here. Load is here hanging with the movable pulley. All right. After this uh, animation, let us focus this concept. All right. So you can very well see here that there is in upper block there are fixed pulley, about which I was talking. This is fixed pulley. This is upper block. Here is effort. All right. And this is the lower block. Lower block, and this is the load. All right. So basically what happens that uh, the upper block and the lower block both consist of either equal number of pulley, or the upper block may have one pulley more than the lower one. All right, there can be the two cases. Either the number of pulleys in upper block or lower block is same, or the upper block may have one pulley more than the lower block. All right, both arrangement is very much possible, and it will still be a second class or second order of pulley. All right. So in this figure you can see there are equal number of pulleys in upper block and lower block. Upper block is fixed and lower block is movable. The load is attached to the movable block. All right, load is here attached to the movable block. Neglecting the friction, the tension in the rope will be same throughout and will be equal to the applied effort P. Alright, it is very much clear that tension is equal everywhere. See here tension is T. Anywhere you say, here tension is T, here tension is T. Everywhere tension is T itself. Let's suppose I am assuming the tension is T. Then everywhere tension is, because uh, same string is wounded on every pulley, whether it is upper block or lower block, whether it is movable or not movable fixed pulley. So same set of string is moving. You can see it very well here. That see the pulley, the string which comes from the effort, it goes down and then again returns here, then down, then returns here, and then finally fixed at a point. All right. So it is written here also that there is one string which passes around all the pulley, and one end which is fixed to the hook of the upper block as shown in the book, shown in the figure. All right, it is fixed here on upper block, fixed on the hook. This is hook. All right. So fixed on a hook, this is hook point on a upper block, at a upper block. The upper block is this. All right. So let us see. Let us draw the FBD. Let's suppose you draw the FBD here. You cut the string, so tension, and here you will be getting the load in downward direction. So what ultimately happens if you do the summation of forces? If you do, well,
this load W is being distributed in these tensors. All right. So I can say that W is equal to 60. No question about it. Ultimately, these tensors are going to share this load W. All right. So W is will be equal to 60, and also further you can see if you draw the FBD here, you will find that this P will be equal to T. ठीक है, P will be equal to T. P will be equal to T. So wherever I have written T, I can change it with P itself. All right. So here in place of T, I can write P. So W by P will be equal to, if we take this P in denominator, then W by P will be equal to 6. So mechanical advantage will be 6. And how much was the number of pulley? 6 exactly. So you are getting some idea that number of pulley will be equal to mechanical advantage, about which we will talk later. So suppose there is no friction, efficiency is 100%. So obviously mechanical advantage will be equal to velocity ratio. So velocity ratio will also be 6. Velocity ratio will also be 6. If we consider the system in which upper block has 3 pulleys and the lower block has 5 pulleys, then one end of the string will be attached to the lower block. The equilibrium of the, suppose there was one case na, when the upper system of pulley, upper block has 1 pulley more. Suppose we are considering that case. I am just saying that, let's suppose, see, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है अपर ब्लॉक, इसमें 3 पुल्ली रखते हैं, यहाँ पे 2 ही पुल्ली रखते हैं. ठीक, इसको नहीं रखते, 2 ही पुल्ली रखते हैं. ये वाला अरेंजमेंट होता है. तो कुछ नहीं होता है, जो आखिरी जो स्ट्रिंग है ना, आखिरी पुल्ली जो होगा उसको हम फिक्स कर देते हैं इससे लाकर. ऑलराइट, आखिरी पुल्ली को फिक्स कर देंगे. देखिए जैसे ये हुआ, लेट सपोज मैं रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. देखिए क्या होता अगर ये नहीं होता, ये नीचे में 2 ही पुल्ली होती, इसको हम ला के सीधे यहाँ फिक्स कर देते हैं. ठीक है, बाकी ये तो होता नहीं, ये तो होता नहीं अरेंजमेंट. ठीक है, नीचे 2 ऊपर 3, ऐसा अरेंजमेंट होता तो क्या होता, कुछ नहीं, अभी भी चीज़ें वहीं की वही रहेगी. W डिस्ट्रीब्यूट होगा इन टेंशन्स के बीच में. ठीक है, टेंशन कितने हो गए, 5, 4 तो पहले के. ठीक है, जहाँ 2 लग रहा था वहाँ अब 1 ही होगा टेंशन. ठीक है, 5 हो गए कुल मिलाकर. आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, देखिए ना. ठीक है, लेट सपोज दिस, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है वो एक टेंशन हो जाएगा. बनाते नहीं बन रहा है, ये देखिए, ये एक टेंशन, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां. ठीक है, 5 टेंशन हो गए. 5 टेंशन मैंने यहाँ दिखाए हैं. देखिए यहाँ पे 5 टेंशन दिखाया हुआ है, W है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, W इक्वल टू 5T होगा इस बार. W 5 टेंशन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, तो T इक्वल टू P तो आप समझ ही गए कैसे होता है, T इक्वल टू P. तो कुल मिला के W जो है 5P हो जाएगा. T की जगह P रख दिया. ठीक है, तो W बाई P इक्वल टू 5 हो गया. मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी एफिशिएंसी जब 100% होगा तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, तो वेलोसिटी रेशियो भी 5 हो गया. तो बेसिकली हमको एक आइडिया लग रहा है, जनरल आइडिया ये लग रहा है कि n नंबर ऑफ पुल्ली, जितने नंबर ऑफ पुल्लीज होंगे, ठीक है ना, उतना ही वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू n हो जाएगा. ठीक है ना, और 5 पुल्ली हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 5, वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 5. यदि पुल्ली 6 हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज का पुल्ली वैल्यू 6 और वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 6. ऑलराइट, तो सेकंड क्लास ऑफ पुल्ली समझ गए आप. सेकंड क्लास ऑफ पुल्ली में क्या है, यहाँ कोई सा भी पुल्ली को रिजेक्ट नहीं करना है, सबको काउंट करना है. ठीक है, जितने भी पुल्ली हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में एक पुल्ली को हम नहीं काउंट करते थे, या सबको काउंट करना है. जैसे 1 2 3 4 5 6 6 पुल्ली हैं तो सब 6 को काउंट करना है. लेकिन इसके पहले जो फर्स्ट क्लास पुल्ली हम पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, इसको रिजेक्ट कर देते, इसको नहीं काउंट कर रहे थे, सिर्फ 1 2 3. ठीक है, सिर्फ 3 काउंट कर देते, जो फार्मूला हम अप्लाई करते थे उसमें. ऑल राइट, 2 पुल्ली तो आपको समझ में आ गया.
2 classes of pulley you have already understood. आगे बढ़ते हैं. थर्ड ऑर्डर और सिस्टम ऑफ पुल्ली देखेंगे क्या होता है थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली. वेल अरेंजमेंट तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, कुछ है नहीं. बेसिकली पहला जो पुल्ली है वो फिक्स्ड है. ठीक है, फिक्स्ड है और स्ट्रिंग यहाँ से हम ले जाते हैं जो फर्दर ऊपर जाकर एक सेकंड मूवेबल पुल्ली पे आता है, और ये जो लाके थर्ड तीनों के कॉमन बेस से अटैच्ड है. ठीक है, और उस बेस से डब्लू लगा हुआ है. ठीक है, इफॉर्ट यहाँ आप लगा रहे हैं पी. ठीक है, बुकिस लैंग्वेज भी थोड़ा देख लीजिए. इन द सिस्टम सेवरल मूवेबल पुल्लीज आर अरेंज्ड कीपिंग द टॉप मोस्ट पुल्ली फिक्स्ड. बताया अभी टॉप मोस्ट पुल्ली फिक्स्ड होता है, बाकी सब मूवेबल होते हैं. लाइक द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली द सिस्टम्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट देयर आर एज मनी स्ट्रिंग एज देयर आर पुल्ली. ठीक है, जितने पुल्ली होंगे उतने स्ट्रिंग हैं. ठीक है, ये देखिए क्या कहना चाह रहा है. ये पहला स्ट्रिंग पहला पुल्ली, ये दूसरा स्ट्रिंग दूसरा पुल्ली, ये तीसरा स्ट्रिंग तीसरा पुल्ली. तो जितने स्ट्रिंग हैं उतने पुल्ली यहाँ पर हैं. ऑलराइट, द पुल्ली आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट हो गया. ईच स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर ईच पुल्ली इज अरेंज्ड विथ रिजिड बेस. बेस जो है रिजिड है, वही तो मैं बता रहा हूँ. ये बेस जो है रिजिड है, बेस एज सोन इन फिगर. द डब्लू इज हंग फ्रॉम द बेस. वेट डब्लू को हंग कर दिया गया. ठीक है, तीनों का टेंशन जो होगा वो इसको बियर करेगा. लेट सपोज T1 T2 T3 तीनों का टेंशन है. इफॉर्ट सबसे लोअर वाले पुल्ली पे लगा दो. ठीक है, अब इसकी एनालिसिस करो. ठीक है, तो क्या तीनों टेंशन का जो लोड है, तीनों टेंशन डब्लू को बियर करेगा. ठीक है ना, डब्लू वजन को तीनों टेंशन बियर करेगा. यहाँ तक का FBD निकालो. FBD निकालिएगा तब क्या पाइएगा, P इक्वल टू ये निकालिएगा, सॉरी T1 T2 T3 इक्वल टू डब्लू. ऑल राइट, अब देखिए ये तीसरे वाले पुल्ली के एनालिसिस करिएगा तो क्या होगा, P इक्वल टू T3 आएगा ना, सिंपल पुल्ली है सब. ठीक है, तो यहाँ लिख दिया. तो जहाँ भी T3 है वहाँ पे हम P लिख सकते हैं. ऑल राइट, अब क्या करिए, इंडिविजुअल पुल्ली पे का FBD बना के एनालिसिस कीजिए. ठीक है, सबसे पहले लेट सपोज हम लेते हैं थर्ड पुल्ली के एनालिसिस कीजिए. ठीक है, थर्ड पुल्ली के एनालिसिस कीजिए. तो ये पुल्ली, ठीक है, पुल्ली में ऐसे लगा टेंशन यहाँ. ठीक है, P है और यहाँ पे कितना है, T3. अच्छा, T3 इक्वल टू P तो हो जाएगा. ठीक है, सिंपल पुल्ली है इसीलिए. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ P है या दोनों तरफ T3 है, कह सकते हैं ना. और एक चीज़ और, यहाँ पे एक ऊपर से T1 जा रहा है. ठीक है, T2 जा रहा है, सॉरी ये देखिए T2. तो जो T2 जा रहा है तो हम बेसिकली अब कह सकते हैं T2 इक्वल टू 2 टाइम P या फिर 2 टाइम T3. ये हम कह सकते हैं ना, कह सकते हैं. याद रखिए इस बात को, यहाँ मैंने लिख दिया है. ठीक है, पहला पॉइंट ये वाला. ठीक है, यहाँ किताब में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है. ऑल राइट, अब इसी तरह से T1 का जब आप एनालिसिस करिएगा, T1 का सेम वैसे ही मतलब सेकंड पुल्ली की एनालिसिस कीजिए. सेकंड पुल्ली की एनालिसिस कीजिए तो आपको क्या आएगा, आपको आएगा T1 इक्वल टू 2 टाइम T3 आएगा. T2 आएगा 2 टाइम T2 आएगा. T2 यहाँ भी, T2 यहाँ भी, 2 टाइम T2 आएगा. और 2 टाइम T2 को क्या लिख सकते हो, तुम भी जानते हो. 2 टाइम T2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 टाइम P होता है. तो इसको कुल मिला के आ जाएगा T1 इक्वल टू 2 स्क्वायर P आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली T1 का सब चीज़ को हमने P के फॉर्म में लिख लिया है. ठीक है, तो अब हम अपने पुराने इक्वेशन पे लौटते हैं. T1 इक्वल टू T1 और सबका वैल्यू अब पुट कर दीजिए. T3 का वैल्यू तो पहले से P है. T2 का वैल्यू 2 टाइम P है, हम निकाल चुके हैं. ठीक है, T1 का वैल्यू जो है T टू द पावर स्क्वायर P है, इतना होता है ना. ऑल राइट, तो बेसिकली इससे हमको एक T स्क्वायर, देखिए T स्क्वायर 2 स्क्वायर
प्लस 2 प्लस 1, इस तरह का एक हमको वैल्यू दिख रहा है। इसको जब आप फार्मूले के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा तो बेसिकली ये आपको फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा जो जनरल किसी भी पुल्ली पे काम कर जाए। इस वाले मतलब t³ -1 को जब आप एक्सपैंड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो पुल्ली 3 था तब ये वाला फार्मूला, पुल्ली यदि n रहे तो 3 की जगह n कर दिया तो ये फार्मूला आया हमको 2 to the power n -1 इक्वल टू p। अब p को नीचे ले जाइए, W/P कितना हो जाएगा, W/P हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 to the power n -1, ठीक है। समझ में कुछ आया? तो बेसिकली 100% एफिशिएंसी पे दोनों बराबर होंगे, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू इतनी। अब जो याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पुल्ली में बस एक चीज़ अगर याद रखना है तो आपको याद रखिए, जब फर्स्ट क्लास पुल्ली होती है तो 2 to the power n होता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, या वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी 100% हुआ तो 2 to the power n का मतलब जानते हो आप क्या होता है, ठीक है। फिक्स्ड पुल्ली को काउंट नहीं करते हैं, आखिरी वाली पुल्ली को काउंट नहीं करते हैं, सिंपल पुल्ली की तरह काउंट करता है, ठीक है। ये याद हो गया। जब सेकेंड वाला केस होता है, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड सिस्टम ऑफ पुल्ली होता है, तब कितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज, जितनी पुल्ली होती है बिना किसी पुल्ली को छोड़े हुए सबको काउंट करेंगे तो जितनी पुल्ली होती है उतना हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो। 100% एफिशिएंसी है तो वहाँ से हमको एक फार्मूला आया, वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पुल्ली या n, ठीक है। और जो थर्ड आया वो हमको कितना आ रहा है, 2 to the power n -1 मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 100% एफिशिएंसी होगी तो थर्ड क्लास ऑफ पुल्ली में, थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली में इतना होता है। तो फर्स्ट में एक बार रिकैप करके बताओ तो कितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज की या वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू, फर्स्ट में कितना होता है 2 to the power n की वैल्यू एक छोड़ के, ये याद रखना, ठीक है। सेकेंड में कितना होता है नंबर ऑफ जितनी पुल्ली है, ठीक है, सारी पुल्ली को काउंट करना है। और थर्ड में कितना होता है ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में होता है 2 to the power n -1, हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना देंगे, लिखते नहीं बनना मुझसे। सिस्टम ऑफ पुल्लीज के अलावा एक और पुल्ली से रिलेटेड सिंपल लिफ्टिंग मशीन होता है बड़ा प्यारा सा, जिसका नाम है वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। वेल अरेंजमेंट तो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा अरेंजमेंट है, ठीक है। देखिए क्या है बेसिकली, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिक्स्ड किया हुआ है पुल्ली, ठीक है। यहाँ पे दो पुल्ली हैं बेसिकली, एक जो है आपको स्मॉलर पुल्ली है, एक जो है आपको बिगर पुल्ली है, दोनों फिक्स किए हुए हैं, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। एक साथ दोनों मूव करेंगे, रोटेशन एक में होगा तो दूसरे में भी रोटेशन होगा, एक साथ हिंज किए हुए हैं दोनों, ऑल राइट। अब क्या है देखिए, एक चेन या एक स्ट्रिंग, रस्सी या एक चेन, एक रस्सी या एक चेन जो है वो यहाँ से देखिए, जो अपर ब्लॉक है, ये जो दोनों पुल्ली हैं बिगर पुल्ली और स्मॉलर पुल्ली, ये दोनों अपर ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। इनके अलावा एक लोअर ब्लॉक भी है जिसमें एक पुल्ली है, ठीक है, और उस पुल्ली से वेट अटैच्ड है, ठीक है ना, W वेट अटैच्ड है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है आप लोग, हाँ वेट अटैच्ड है, ऑलराइट। तो देखिए इसको ध्यान से, और स्ट्रिंग किस तरह से गया, स्ट्रिंग को देखिए, डायमीटर तो ले लीजिए डी, कैपिटल डी ले लीजिए बड़े वाले का, छोटू डी ले लीजिए छोटे वाले का, स्मॉलर पुल्ली का, ठीक है। एक इंडलेस चेन है, मतलब कोई इंड नहीं है इस चेन का, बाकी सभी जो सिस्टम्स हम पढ़ रहे थे उसमें चेन का एक इंड था जहाँ से आप खींचते थे, लेकिन ये इसमें वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक में कोई भी चेन का इंड नहीं होता, अंत नहीं होता, ठीक है। बेसिकली ये चेन जो है यहाँ बिगर पुल्ली से अपर ब्लॉक से जो लटक के जो आया, ये लोअर ब्लॉक जो वाला पुल्ली है जहाँ से वेट लगा हुआ वहाँ से गया, और फिर फर्दर अपर ब्लॉक में जो छोटा पुल्ली है जिसकी डायमीटर डी है, छोटू डी, वहाँ से घुमा और ये ऑल द राउंड वापस से अपने इनिशियल जगह पे चला गया, ठीक है। और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं,
ठीक है। तो आप जब खींच रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, फॉट लगा रहे हैं पी, ठीक है। लोड तो पहले से डब्ल्यू यहाँ काम कर रहा है, एक ही कलर से होने से दिक्कत हो रही है समझने में। ये पी आप यहाँ लगा रहे हैं, डब्ल्यू यहाँ लग रहा है, ऑलराइट। तो इस मशीन का देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। एक और डायग्राम देख लीजिए, शायद चेन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। वही चीज़ है जो वहाँ था, ठीक है। डायरेक्शन थोड़ा यहाँ दिखाया हुआ है। लेट सपोज कि आप यहाँ से इसको ऐसे खींच रहे हैं, लेट सपोज ये यहाँ से ऐसे खिंचा रहा है, तो ये अल्टीमेटली यहाँ जाएगा और ये ऑल द राउंड घूम के ये फिर अल्टीमेटली यहाँ आएगा, ठीक है। और ये ऑल द राउंड घूम के यहाँ आएगा और ऑल द राउंड यहाँ से आप घूमो, ऐसे घूम, इसका मूवमेंट होगा, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑथर, ठीक है, ऑफ दिस बुक एंड पब्लिशर, मेरे ख्याल से ये यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन, पी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। अदरवाइज़ क्या मतलब रह जाएगा, मेरे ख्याल से ये ऐसे होना चाहिए, ब्लैक कलर से दिखा दो क्या, ठीक है। यहाँ से नहीं होना चाहिए, इस किताब में थोड़ा सा मेरे ख्याल से नहीं, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी है, ठीक है। ये यहाँ से लौटता फिर यहाँ आ जाता है ऐसे, ठीक है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। स्ट्रिंग छोटे वाले मिनट आपको पहले मैंने फिगर दिखाया है ना, उसी को फॉलो कीजिए, ऑलराइट। तो क्या होता है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी ब्लॉक है। अपर ब्लॉक ए हैज़ टू पुल्लीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर, जो बातें मैंने बताई वही है, लिखा हुआ है। दीज पुल्लीज टर्न्स टुगेदर एज वन पुल्ली, एक साथ घूमेगा दोनों, ठीक है। द लोअर ब्लॉक बी कंटेन्स वन पुल्ली टू विच लोड डब्ल्यू इज अटैच्ड, एंड इनलेस चेन passes round the larger pulley, then rounds the lower pulley and finally rounds the smaller pulley of block A। जितनी बातें अभी तक बताई वही बातें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूँ, क्या बताऊँ मैं। The remaining chain hangs and slack and is joined to the first portion of the chain as shown in figure। जब वापस लौट के वहीं पे जुड़ गया, ठीक है, ठीक है। The effort P is applied टू द चेन पासिंग राउंड द लार्जर पुल्ली ऑफ ब्लॉक है, इफॉर्ट यहाँ लग रहा है, ठीक है। डब्ल्यू बाकी तो वही से डायमीटर, ठीक है। तो एक बात बताइए, पते की बात, जो जरूरी बात है वो करते हैं, ठीक है। एक राउंड रोटेशन होगा, इसका डायमीटर, बड़े वाले का डायमीटर कितना है, डी है ना। एक राउंड रोटेशन होगा तो कितना कितना स्ट्रिंग में कितना मूवमेंट आएगा या चेन में कितना मूवमेंट आएगा, पाई डी आएगा ना, सरकमफ्रेंस पाई है तो पाई डी आएगा ना बड़े वाले में। बड़े वाले चेन, बड़े वाले ये जो है बड़ा वाला जो पुल्ली है उसमें ए पूरा सर्कमफ्रेंस उसका कितना होगा, पाई डी होगा, ठीक है। छोटे वाले का कितना है, दोनों चूँकि साथ घूमेगा, ठीक है, दोनों चूँकि साथ घूमेगा तो देखो छोटे वाले में कितना होगा, पाई डी होगा, पाई छोटू डी होगा, ठीक है। लेकिन देखो क्या है, एक में देखो क्या है वो डिस्प्लेसमेंट, वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अपर ब्लॉक पुल्ली जितना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चेन पुल्ड बाय द लोअर ब्लॉक, सिंस द लोअर ब्लॉक ऑल्सो टर्न्स विद द लार्जर पुल द लेंथ ऑफ चेन इतना, ठीक है, ऑल राइट। देखो यहाँ से तुमने ऐसे खींचा, यहाँ से ऐसे खींचा आपने लोड लगा के, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो रस्सी कितनी खुली, पाई डी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ छोटे वाला पुल्ली है उस पर क्या हो रही है, यहाँ खुल रही है तो छोटे वाले में रस्सी लपटा भी रही है, ठीक है। तो पूरा पाई डी तो नहीं होगा, कुछ तो इसमें छोटा पाई डी घटेगा भी, क्यों, क्योंकि देखो बहुत घिच हो गया है, ठीक है। ये जो है यहाँ से तुम लोड लगा रहे हो पी, ठीक है ना, तो जितना तुम खींच रहे हो वही तो जाके यहाँ से ऐसे ऑल द वे यहाँ पे लपटा भी रहा है, ठीक है ना। तो कितना लपटा रहा है, एक राउंड उसमें भी लग गया तो पाई डी, छोटा पाई डी, ठीक है ना, क्योंकि छोटा वाला
जो स्मॉलर पुल्ली है उसमें लपटा जा रहा है, बड़ा वाला है पुल्ली उसमें खुल रहा है, जितना खुल रहा है पाई डी हो गया कैपिटल, और जितना लपटा रहा है पाई डी हो गया स्मॉल। देखो बहुत सिंपल भाषा में जैसे हम लोग बात करते हैं उस तरह बता रहा हूँ, विदाउट एनी टेक्निकल टर्म, कि आपको समझ में आ जाए क्या है, लपटा रहा है, खुल रहा है, इस तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, लैंग्वेज में, आपको समझाने के लिए बस इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, नेट शॉर्टनिंग ऑफ चेन क्या है, नेट शॉर्टनिंग ऑफ चेन, नेट शॉर्टनिंग ऑफ चेन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा जितना मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पाई डी माइनस पाई डी, ठीक है, ऑल राइट। तो आगे बढ़ें, सब कुछ मिटा दूँ मैं, ठीक, इतना हो गया। अब एक बात बताइए मुझे कि लोड कितना लिफ्ट करेगा। वेल मैंने आपको पहले ही बताया है, एक सिंपल मशीन में मैं बता रहा था आपको, मुझे पता नहीं याद नहीं आ रहा है कौन सा सिंपल मशीन। देखिए इधर भी लोड W, इधर भी डिस्टेंस उतना ही है, इधर भी डिस्टेंस उतना है, ये दोनों चेंज, इसको यदि ऊपर जाना है तो जस्ट टोटल जो स्ट्रिंग में चेंज होगा उसका आधा होता है, ठीक है। तो लोड कितना, ऑल दो स्ट्रिंग में इतना चेंज हुआ है, स्ट्रिंग में इतना चेंज हुआ है, लेकिन जो लोड है वो लिफ्ट होगा उसका आधा ही होगा, क्योंकि दोनों साइड उसके स्ट्रिंग है। तो पाई डी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये भी करेक्ट, राइट। अब बताइए वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, इफिशिएंसी 100% है, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाई इफॉर्ट बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाई इफॉर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। इफॉर्ट में कितना मूव कराए थे, इफॉर्ट आप कितना मूव कराए थे, यहाँ से, ठीक है, पी, तो इफॉर्ट कितना मूव कराए थे, 1 रिवॉल्यूशन हुआ था, इफॉर्ट हमारा तो पाई ए डी था, ठीक है। और लोड कितना मूव किया था, लोड ऊपर कितना गया था, लोड ऊपर गया था पाई डी माइनस पाई छोटू डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो लोड बाई इफॉर्ट पता है तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये देखिए पाई डी माइनस 2, ठीक है, 2 ऊपर गया तो ये वाला फॉर्मूला है। तो कुल मिला के इसका आपको वेलोसिटी रेशियो का आपको फॉर्मूला पता चल गया, ऑल राइट। अब यदि रेडियस के फॉर्म में दिया रहे तो कंफ्यूज मत करिएगा, जहाँ रेडियस के फॉर्म में तब भी फॉर्मूला ही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा ऊपर नीचे 2 2, ठीक है। रेडियस के फॉर्म में तो आर छोटू वाले का रेडियस है, कैपिटल आर जो बड़ा वाला का रेडियस है, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टीथ के फॉर्म में दिया रहेगा तो नंबर ऑफ टीथ्स इन लार्जर पुल्ली, नंबर ऑफ टीथ्स इन स्मॉलर पुल्ली, टीथ बना हुआ है, यदि चेन फंसता है तो उसे टीथ बना हुआ है पुल्ली में, तो कुछ नहीं T1 T2 के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। एक को बड़े वाले को T1 मान लिया, छोटे वाले को T2 मान लिया, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ उसमें उतना है, T1 है T2 है। तो कुल मिला के आपको, अब मुझे लगता है पुल्ली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जब भी आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 4 नंबर का भी आ सकता है। Okay, all right. With this, we come to the end of this particular topic. We have already discussed simple pulley, first systems of pulley, first system of pulley, second system pulley, of third system pulley, and lastly Weston differential pulley. All right. So I think you have understood something. With this we come to the end of this particular topic. I hope you have enjoyed the class. All right, please do like, share and subscribe the channel. Goodbye.